Hi everyone, this is Manik Kaur from Mindful Living by Manik Kaur on Instagram. And I must say that all these years I've been talking about manners, grooming, how to conduct yourself, how to be more mindful when it comes to your behavior so that you don't end up hurting anybody. But just don't forget to be mindful about what is happening around you as well. One of those problems of today's day and age is cybercrime, where people like you and me are falling victim to it. And in that context, I thought of talking to DGP Uttarakhand, Mr. Ashok Kumar, and Mr. O.P. Manocha, ex-DRDO scientist. And I will specifically talking about their book, Cyber Encounters. So my first question to DGP sir is this, that there is already so much of information available. Why this book, and what makes this book so unique? Actually, information that is available is sometimes it's in the form of research or in the form of knowledge which people don't want to take. Once you convert information into story form, Right. so it becomes more interesting, Right. more graspable. So that is the idea, that we have converted this information about cybercrime, how cybercrime happens, what is the modus operandi of cyber criminals, how people get trapped, what are the basic factors that people get trapped for, and then how police works out the cases, then how we can avoid becoming victims to cyber criminals. So these are the 3-4 targets of the book, and we have told all this in taking stories from real life. So once people see that real life has, these are the real life stories, so they can connect more. Right. So like I'll give you an example. There is a story where a lady wants to buy a pup for her daughter as a gift on her birthday. Right. And she just starts with a deal of 15,000 online to buy a puppy. Yeah. And finally she ends up paying 66 lakh rupees. What? Yeah, this is the truth. The victim this is is true from story. Dehradun. Oh my God, The how cri- did that happen then? And the criminal is from Africa. Yeah. Oh my God. So that is the online world. You are teaching people how to be mindful. So you need to teach them now how to be mindful in the cyber world as well. Exactly. That is the purpose of this conversation, that I would want my audience to be digitally aware, mindful and responsible as well. Yes. ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, बट लाइक हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस. जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें अवेयरनेस फैलाना है. साइबर स्पेस में हमको साइबर अवेयर होना है. बहुत ज्यादा जरूरी है. Absolutely. उसके लिए जो है ना, हमने ये इंफॉर्मेशन इसलिए इस फॉर्मेट में Exactly. I think my audience can really relate with this, because when I started out as an etiquette coach, India में सबको लगता था etiquette, oh God, ये तो बहुत ही it's a taboo word. It was something which was causing embarrassment to people कि हम etiquette सीखेंगे, हमें क्या तमीज नहीं है और हमें क्या कोई तमीज सिखाना चाह रहा है. So उस चीज के लिए when I started out during COVID time, through simple format, again आपकी वाली बात, जैसे आपने simple format में, easy format में, relatable format में उस चीज को awareness create किया, I also did the same, and now etiquette has become the buzzword. So much so कि अभी सभी लोग अपने आप को image coach ना कहकर etiquette coach कह रहे हैं, because it's become acceptable, it's become relatable. So I think cybercrime एक ऐसा टर्म है जो हमें अभी भी एक कॉमन मैन को या एक कॉमन पर्सन को बहुत टेक्निकल लगता है, अनलेस और अनटिल यू फाइंड योरसेल्फ, और ऐसे लगता है कि ये किसी के साथ होगा, हमारे साथ नहीं हो सकता. ऐसा लगता है हमें कि वो उन लोगों के साथ होता है जो इंटरनेट पे कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं या उस तरह का काम कर रहे हैं. कॉमन बंदे को कैसे हो सकता है? How can सबसे ज्यादा common man ही फंस रहा है. And something like this, in fact, it's very interesting because on Instagram there are so many of these ads that I see for dog lovers who want to adopt new like dogs as a pet or any pet for that matter. And something like this has happened with a woman. It's crazy. Yeah. It is really, really unbelievable, and it's a fact, and it's a real life case, like you said.
ओके सर, आप दोनों ने मिलके को-ऑथर की है ये किताब, एंड इट्स बाय द वे इट्स अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज यू गाइस कैन सी हियर. सो हम किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं इस किताब को, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड बिकॉज इट्स लाइक इन द स्टोरी फॉर्मेट. अभी हमारी और भी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही है. पंजाबी में ऑलरेडी प्रोसेस ऑन है. Wow, We that's have an audio book wonderful. also which is out. It's already available on Okay. Audible. Oh, that's wonderful. That's wonderful. और गुजराती मराठी में भी. Awesome. Like And it's published by Penguin. So obviously, you know, it has, I would say, that benchmark also for people. Quality benchmark. Quality benchmark, I'm sure. And of course, sir, आप दोनों ने इतनी, it's your labor of love. तो मैं, sir, आपसे ये पूछना चाहूंगी. What is your contribution in terms of, because you both are bringing, he's obviously bringing the real life cases, incidents जो actually उन्होंने handle किए हैं, Correct. देखे हैं. And both of you bring two different perspectives into the book. So I want to know how exactly have you contributed. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं. देखिए, जो ये बुक है ना, पहले तो हमें देखना है कि हम लोगों ने बुक लिखी क्यों. तो जैसे शिव कुमार जी ने बताया, टू ब्रिंग अवेयरनेस टू पीपल, लोगों को इंटरेस्टिंग वे में बताने के लिए कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे हो सकता है, पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्या क्या वो उसके अंदर मेथोडोलॉजीज, क्या टेक्नोलॉजीज यूज करता है. तो हम एक दिन ऐसे बैठे हैं, कहा बहुत साइबर क्राइम बढ़ गया, लेट अस ब्रिंग आउट अ बुक. तब इन्होंने कुछ केसेस छांटे और कहा कि ये कुछ ऐसे केसेस हैं, 12 केसेस बहुत सारे थे, बट उसमें से 12 हमने ऐसे चुने हैं जो कि हर टाइप का साइबर क्राइम को रिप्रेजेंट करता है. विद टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग न्यू केसेस आल्सो, जो हम बाद में विल टॉक इन कोर्स ऑफ द इंटरव्यू. बट इसके अंदर 12 वो केसेस हैं जो कॉमनली लोगों को अफेक्ट कर रहे थे, जो क्रोर्स में रन कर रहे थे. ऐसे कुछ केसेस थे जिनका, जो अगर हम देखें, जो लॉस हो रहा था वो क्रोर्स में जा रहा था, Hundreds of crores में जा रहा Oh था. my God. तो उसमें कुछ ऐसे केसेस, तो वो केसेस लेके फिर इन्होंने कहा कि ये केसेस हैं. फिर हमने उनको स्टडी किया, फिर उन्होंने कहा कि इसको हम लिखेंगे. फिर थोड़ा सा हमने उसमें फिक्शन ऐड किया जिससे कि इंटरेस्टिंग बने वो, और उसके बाद फिर बैठ के एनालिसिस करके टेक्नोलॉजी उसमें देखी क्या यूज हुई है, पुलिस से बात की. बट वी वर केयरफुल इनफ नॉट टू रिवील ऑल द टेक्नोलॉजी व्हिच पुलिस इज यूजिंग टू कैचिंग द क्रिमिनल्स. है ना, पता चला साइबर क्रिमिनल्स ने भी उसको भी सीख लिया. यूज कर लिया, हाँ. तो मतलब क्योंकि अपने advantage के लिए. अपने एडवांटेज के लिए. तो लेकिन हमने काफी चीजें इसमें हाईलाइट की हैं जो कॉमन मैन की समझ में आती हैं. कॉमन मैन को पता चलेगा कि मुझे क्या ऐसी चीजें जिससे मैं फंस सकता हूँ, क्या है, मुझे ग्रीड नहीं करना, मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर रहना है, मुझे कोई बहुत क्यूरियस नहीं होना किसी चीज पे, मैं कहीं क्लिक ना कर दूं. तो ऐसे करके हम लोगों ने बैठ के बात करके फिर करके बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें. अलकनंदा जी का भी कंट्रीब्यूशन है. रात रात तक बैठ के देखना, उसको पढ़ना, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना. तो खाली हम दोनों ने लिखे ही और भी बैकग्राउंड में बहुत इसमें एक बात और है ना, को-ऑथर होने का फायदा ही होता है. हाँ. कि हो सकता है मैं एक चीज को पुलिस के नजरिए से देख रहा हूँ, राइट, तो ये साथ आ गई तो उसमें कॉमन मैन का नजरिया भी आ आ गया, जाता है. तो वो उसमें क्वालिटी ऐड हो जाती है. Definitely. So that is the advantage of राइट. तो क्राइम और टेक्नोलॉजी दोनों. ही इज एमटेक फ्रॉम आईटी. That's such a तो killer हम लोगों ने combination. बैठ के फिर टेक्नोलॉजी भी डिस्कस की. That's a killer मैं तो combination. पुलिसिंग ज्यादा नहीं कर पाता था, ये टेक्नोलॉजी डिस्कस करते थे. अरे भाई ये क्यों बता रहे हो, यूआर चीजें क्यों इसमें लीक करो, IMEI नंबर. उन्होंने कहा सर ये चीजें कुछ तो डालनी पड़ेगी ना, नहीं तो लोग कैसे अवेयर होंगे. That makes me very curious. Yeah. Though I have gone through the book, but I want सर आपसे एक और हमें केस डिस्कस आपको करें. 2 केसेस बताते हैं. तो एक केस मैं बताता हूँ, वो है पावर बैंक ऐप घोटाले का, और एक हनी ट्रैप का केस है, वो मनोज जी बताएंगे. ठीक है, तो इससे लोगों को पता चल जाएगा कि बुक की 12 कहानियां कैसी हैं. राइट. जो पावर बैंक ऐप घोटाला है ना, ये मार्च 21 में गूगल प्ले स्टोर पे एक पावर बैंक ऐप करके ऐप आई, और इसके बैक पे चाइनीज क्रिमिनल्स थे. उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपका 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, और लोगों को कन्विंस करने के लिए कि पैसा कैसे डबल होगा, दे सेड कि आपका पैसा हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. स्टार्टअप्स जिनको पीछे IITs का दिमाग है, जिसके पीछे IIM वालों का दिमाग है, सो इसलिए पैसा जल्दी डबल हो गया. तो जो हमारा विक्टिम है, उसने शुरू में 10,000 लगाया, उसका 15 दिन में 20 हो गया. उसने 16वें दिन ही 50,000 लगा दिया, तो उसका 1 लाख हो गया. तो अगली बार उसने अपने 10 दोस्तों को भी बता दिया. ये तो बहुत बड़ी चीज आई है. सो ऐसे करके लोगों ने इसमें पैसा खो दिया. जून जो है में ये लोग के अगेंस्ट FIR हुआ. वी वर द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च FIR. आज की तारीख में 300 से ज्यादा FIR देश में हो चुके हैं. ये 1,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है. इतना पैसा इकट्ठा करके गायब हो गया.
जून में गूगल प्ले स्टोर से गायब, पावर बैंक गायब, और सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू विदेशों में चला गया यहाँ से। दैट इज द क्राइम। ये हमने इसमें बताया है कि हम ऐसे छोटे लालच में न आए, इतनी जल्दी कहीं से पैसा हवा में पैदा नहीं होता है, या आजकल लोग इन्वेस्टमेंट के झांसे में आ जाए। Yeah, I was about to say this thing, sir, कि ये जो आपने बोला ना, double the money and all this, ये हम मेरे ख्याल से मेरे बचपन से मैं सुन रही हूँ। वो वर्चुअली नहीं होता था, बस यही फर्क है कि ये डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है, वो शहर में आके होता था। हाँ, और फिर वो लोग गायब हो जाते थे। Yes, yes, I think this is what is happening, and this basic thing जो सर ने भी बोली और आपने भी बोली, जो ये greed, ये जो greed है, it's very easy to kind of become a victim because of this greed inside us, that we want quick results, हर चीज में जल्दी चाहिए, returns जल्दी चाहिए, and definitely like you said, sir, किसी चीज में शॉर्टकट नहीं है, और कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो फिर there is something somewhere, कुछ फंसी है, yeah, it is wrong, something is फंसी, yeah, and this was a Dehradun का case, right? Yes, this happened all over India. हमारे यहाँ ये जो victim थे वो देहरादून के थे, जिसपे हमने केस दर्ज किया, जो FIR हमने फर्स्ट किया, बाकी तो 300 प्लस FIR है देश भर में, और 10 लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड किया था, 10 लाख। Oh my God, so, how quickly it spreads, मतलब ये भी है ना कि खुद तो quickly it spreads, हाँ, absolutely। तो जो हनी ट्रैप की बात कर रहा था, जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है, वो मनोजा जी नरेट करेंगे आपको। तो इसमें एक हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए आजकल क्या है कि अभी ना जितने भी रिलेशंस हैं, हम लोग ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग फिजिकल रिलेशंस हैं या वो जैसे भी हैं किसी के साथ भी, तो हम सोचते हैं यार ऑनलाइन मिल जाए हमें, क्योंकि टॉलरेंस बहुत कम हो गई है लोगों में। True. और हम रिलाई भी गूगल पे ज्यादा करते हैं, लोगों पे नहीं करते। क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम गूगल पे उसको वेरीफाई करते हैं। तो ऑनलाइन रिलेशनशिप के चक्कर में एक 65 ईयर ओल्ड थे इंसान, जो कि यहीं देहरादून से लाइक किसी ऑफिस से रिटायर हुए थे, तो उनकी फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो गई। और फ्रेंडशिप किससे हुई? एक एक्स मेजर थी आर्मी की, वो सेटल्ड इन लंदन, क्लेमिंग टू बी वो बाद में कैसे हो गया। अब वो कैसे वो दोनों पहुंचे, कहाँ पहुंचे, क्या है आजकल सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। जो क्रिमिनल्स थे वो बहुत टाइम से स्टडी कर रहे थे इनके अकाउंट की, क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे जाते हैं, उनके बेटे ने अकाउंट खोल के दिया था कि आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका दिल लगा, आप लोनली है, तो आप देख लीजिए फैमिली क्या कर रही है, कैसे है ना उनके लिए। तो वो क्या होता है कि कभी कभी फेसबुक ही हमें या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया ऐप हमें ऐसी चीजें पुश कर देती है जो हम ना चाहते हुए क्लिक कर देते हैं। जब आपने एक बार उसको क्लिक कर दिया तो वो जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका एल्गोरिथम है, वो कीप्स पुशिंग यू सच काइंड ऑफ थिंग। वही चीज आपको भेजता रहेगा आपको, उसको लगता है ये इनका इंटरेस्ट है। हाँ सर, इवन इफ यू आर लुकिंग एट एन एड, आप उसके बाद दूसरी ऐप पे जाएंगे तो सबसे पहले वही आपको एड फ्लैश करेगी। अभी तक आपने बाय नहीं किया, जब तक आप बाय कर नहीं लेंगे वो आपके पीछे पड़े रहेंगे। यू नो, इन सम ऐप और द अदर, दे कीप ट्रैकिंग यू अगेन। तो कोई भी पोस्ट होती है अगर, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें 4 चीजें करते हैं। या हम उसको लाइक करते हैं, या हम उस पर कमेंट करते हैं, या हम उसको शेयर करते हैं, या हम उसको देख के आगे निकलते हैं, इंस्टाग्राम पे सेव भी कर देते हैं पोस्ट को। तो ऐसे ही अगर उसने क्लिक कर दिया तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू क्रिमिनल्स देख रहे थे कि किस टाइप की पोस्ट को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है। कहीं किसी लड़की के पोस्ट को लाइक कर दिया, उसको कुछ उसमें कमेंट कर दिया, जो भी उनका था, कोई ऐसी इंटेंशंस बैड नहीं थी। लेकिन वो करते करते उसने कहा अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट तो ये तो ठीक दिख रही है, मेजर भी है आर्मी की, ठीक है हम लोग धीरे धीरे दे स्टार्टेड टॉकिंग। देयर वाज नो बैड इंटेंशन इन दैट, दे बिकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतने ज्यादा हुए, सिंस ही वाज लोनली, इसके बच्चे बाहर थे, जॉब करते थे, दे वर नॉट विद हिम। तो इतना वो लोनली थे कि वो उसी पे ही रिलाई करने लगे। कोई भी चीज होती थी उसको मैसेज करके उनसे पूछते थे, कोई बात होती थी अपनी शेयर करते थे इमोशंस। तो ये सब करते करते देन वन डे दैट शी सेड कि मैं इंडिया आ रही हूँ, कुछ प्रॉपर्टी का इशू है, My uncle wants to donate me the property. और उसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए वापस से आना है, क्योंकि बिकॉज बेसिकली आई एम एन इंडियन नेशनल। राइट। तो शी हैड गॉन देयर टू टेक केयर ऑफ हर अंकल्स प्रॉपर्टी एंड ही हैड डाइड, ऐसा स्टोरी में उसने बताया। सीम्स वेरी नॉर्मल। तो उसने कहा ठीक है वापस आ रही हूँ, तो एयरपोर्ट से आके कॉल किया उसने, ही वाज वेटिंग लाइक इम्पेशेंटली, वो उसको लेने दिल्ली भी चले गए, यार मेरी फ्रेंड आ रही है इतने दिनों बाद। तो वहां जब गए तो उसने कहा कि अरे मैं तो यहाँ कस्टम्स ने मुझे पकड़ लिया है, और ऐसे करके कस्टम से फोन भी आ गया, मैं कोई ज्वेलरी लाई हुई थी, कुछ ऐसा सामान था, कुछ मेरे पास कैश था। उन्होंने कहा कि आपको तो कुछ लाख रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे हमें, हाँ हम आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, आप उसमें पे कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या करें, अब आई हुई है, इतना टाइम बाद आई है, तो आई मस्ट लाइक हेल्प हर। तो उन्होंने पे कर दिया, 3 लाख कुछ रुपए डाल दिए।
फिर उसको थोड़ी थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसको 1-2 घंटे बाद फोन आया कि अरे ये तो कुछ और इश्यू हो गया, मेरे बैग में कुछ ऐसी चीजें कॉन्ट्राबैंड उन्होंने कहा निकले जो कि मैंने तो कभी डाले ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो वो करते 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 वो लेडी ने ऐसा कुछ जाल बनाया कि कभी वो कुछ पोस्ट करके, कभी वो एक्साइज का कहते हैं, कभी वो कस्टम्स बोल के, कभी वो कहते हैं पुलिस है, ये वो करके उन्होंने इनसे करीब 97 लाख रुपीस जो है 97 lakhs का फ्रॉड उसके अकाउंट से ट्रांसफर करा। रियल लाइफ स्टोरी, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ डेज किया बाद में, उस समय तो एक दिन में नहीं हुआ है। हाँ। और उनकी फ्रेंडशिप कितने टाइम से फ्रेंडशिप थी, उन्हें करीब 6 महीने हो गए थे, 6 6 months। वो भी अगर आप देखें तो इसमें कितने include- 6 महीने हाँ, कितना 6 लंबा महीने में trap। कुछ नहीं मांगा उसने। But it was a trap. It was a She trap. setting- It was a trap. Honey she trap was- है ये। हाँ, It is a honey trap. वो भी तो सर टाइम हम काउंट करेंगे ना कि अगर आप Yes. that time also तो when ऐसी she केसेस started में क्या होता है, feeling सी जो Confidence हमारे building. confidence, it's a और part जित- of the trap. Confidence हाँ, building. जितने भी हमारे ऐसे सिंस होते हैं जो भी हमारे प्राइवेट It's लाइफ very से, sad. लव से रिलेटेड, वी डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक। हम हमेशा छुपाते हैं उनको, किसी से डिस्कस नहीं किया, बेटे से नहीं किया, बहू से नहीं किया, पुलिस के पास जाने से डरे कि मेरे को शेमिंग स्टेयर मिलेगा। बेटा आया तो वो रोने पड़े, उसको देख के एकदम से गले लगे और वो एकदम रोने लगे, तो बेटे ने कहा नहीं हमें इसको रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। बट पुलिस वॉज सो गुड, साइबर स्टेशन पे गए तो उन्होंने बैठाया, पानी पिलाने का, ऐसा हो जाता है अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, अब हम कहीं इसको लीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी भी नेम्स वगैरह सब हिडन है, कुछ ऐसा नहीं है, बट आप हमें शेयर कीजिए ताकि आगे ऐसे क्राइम ना हो। दिस इज अ ट्रू केस। और उसके बाद पता नहीं कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, बट ये क्या अवेयरनेस बढ़ रही है। लेटेस्ट आ गया सेक्सटोर्शन। Sextortion सेक्सटोर्शन में तो एक आप step और गलती नहीं आगे। कर रहे हो। ओरिजिनली जो सब जब सेक्सटोर्शन Digitally शुरू हुआ not. था यस, तो आपको आप कुछ गलती करते थे, you proceeded in some relation and तब उन्होंने कहा कि let's take our clothes off और फिर उसका वीडियो बनाते थे। अभी क्या है, they will call you from an unknown number, video call, and for a minute if you open the video call, on the other side will be some nude woman or obscene movie, and then they will click the forward उसके बाद video में trap, माफ कर then देंगे। blackmailing, Oh my God. continuous blackmailing. It is very sad. I Yes. think first, talking about the other case, I mean, I would just say, coming from a place of loneliness, Yes. Yes. और इस ऐसे केसेस को सुन के, I think ह्यूमैनिटी के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है। यही होता है। देखिए साइबर क्राइम होता है, जो भी या कोई भी क्राइम होता है, तो एक तो उसका पैसा तो लॉस होता है, दूसरा उसका ह्यूमैनिटी से उसके फ्रेंड्स लूज कर देते हैं वो। जो उसने सोचा था कि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, मेरी इमोशंस शेयर कर रही है, वो सब कर रही है, she took advantage of that. And आदमी को याद रखना पड़ेगा, वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी सेफ रियल नहीं है। कुछ भी सेफ नहीं। रियल भी होता है बट सेफ कुछ भी नहीं। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए हम लोग ये कहते हैं, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। ट्रू। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपलोड करी है वो कहीं ना कहीं पड़ी है, डार्क वेब पे चली जाएगी, वहां से वो स्क्रैपर्स उसको निकालेंगे डेटा को। Even if our phone और is वो right share next to us, they're saying that हर मिनट का, हर सेकंड का is getting recorded ये सब पता नहीं कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो, सुन रहा हो, फोन भी नेवर नो। That's true. अलेक्सा सुन रही है, गूगल Alexa And Google को सुन बाहर रहा है, कर देना वो सब चाहिए। सुन रहा है। but हम लोग कितना डिपेंडेंट हुए जा लेकिन रहे क्या हैं। करें। But again, sir, इसमें ये भी है, and I talk about it on my page also a lot, that I tell people कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन खत्म हो गया है। Yes. हम 4 लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, चारों अपने अपने फोन पे होते हैं। खाना खाने के लिए फैमिली बाहर आई है, लेकिन चारों अपने अपने फोन पे है, ठीक है। और जब फूड खाना आता है तो जो यंगर वाले मतलब जो लॉट होता है, बच्चे होते हैं, मैं भी होती हूँ, so let me not just glorify myself, मैं भी पहले खाने की फोटोग्राफ लेती हूँ, उसको अपलोड करती हूँ उस अपनी स्टोरी पे, because see a lot of people tell me, but then of course there is a good side to it, and when you go overboard there is obviously the negative side. But आज ये भी एक सच्चाई है सर, जो I feel कि I tell people, a lot of people tell me तुम हमेशा अपने फोन में होती हो, तो I say कि okay, you give me better company, मैं फोन रख दूँ। This is also something which we have to deal with. जैसे आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया सर, आप दोनों ने ये किताब निकाली है, मुझे खुद इतना कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ बैठ के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, that's why I connected with you guys, that ये related है। Yes. ये क्यों रिलेटेड है? इस वजह से एक तो ऑब्वियसली अवेयरनेस क्रिएट करना, माइंडफुल रहना, सतर्क रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना, ये सब तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से भी रिलेटेड है दैट ह्यूमन इंटरेक्शन क्यों नहीं है। जो चीज में मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ सर कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमने केमिकल्स को टॉक्सिक कहा था हमेशा, प्लास्टिक, केमिकल, हार्मफुल सब्सटेंसेस, धुआं, पोल्यूशन,
हम टॉक्सिक कहते थे, बट अगर मैं अभी आपको बोलूं टॉक्सिक, तो आपके माइंड रिलेशनशिप में है रिलेशनशिप आएगा, या कोई इंसान आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, कोई जो नेगेटिव एनर्जी देता है उसे टॉक्सिक तो मानते हैं। आपके दिमाग में प्लास्टिक नहीं आएगा, केमिकल भी नहीं आएगा। प्लास्टिक को तो हम रीयूज कर सकते हैं ना। तो that is इंसान why को I reuse thought of करते हैं। reaching out to you for this reason also, because I feel somewhere कि ये सब जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ और एआई की तरफ और ये वर्चुअल वर्ल्ड में जा इसलिए रहे हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में बिल्कुल सब कुछ खत्म है, लिहाज खत्म है, प्यार खत्म है, केयर खत्म है। पहले हम लोग के कोई भी रिलेटिव या कोई भी नेबर्स भी ऐसे घर में आ जाते थे प्यार से, मतलब उठ के, और हम उनको इतना अच्छा वेलकम करते थे। अभी हमारे बेस्ट फ्रेंड ने भी आना होता तो हमें एक हफ्ते पहले प्लान बनाना होता है, इस दिन इस वक्त आना, और आर यू अवेलेबल और नॉट। सो ह्यूमन इंटरेक्शन हैज गॉन डाउन ऑल्सो, एंड आई एम श्योर व्हेन ह्यूमन इंटरेक्शन बिकम्स बेटर, वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे ट्रैप होना यस भी कम होगा। फिर पैसा बनाना सर, एकदम इंस्टेंट पैसा बनाना, अभी हमारे पास जितनी फैसिलिटीज हैं कभी भी नहीं थी, लेकिन अभी हम जितने डिससैटिस्फाइड हैं कभी भी नहीं थे। डबल होना, हमें अभी पैसा चाहिए और ज्यादा चाहिए, हमें अभी इंटरनेशनल ट्रिप लगाना है, हमें अभी सब कुछ चाहिए। सो आई थिंक समवेयर साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं वो रियल वर्ल्ड से बहुत डीपली कनेक्टेड है। वो तो है ही, तो और हम वो तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो इसी बहुत वजह ही से ज्यादा है, कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है बिल्कुल। दोनों केसेस में। ये मनी वाले केस दोनों भी, और भी जितने भी आप देखेंगे Honey 10 trap केस और भी हैं, वो एक से एक इंटरेस्टिंग और इतना ज्यादा वो, मतलब इसके अंदर थ्रिल और वो है कि आप पढ़ेंगे तो आप छोड़ नहीं पाएंगे किताब को। इट्स नॉट दैट वी हैव रिटन द बुक, आई एम टेलिंग यू, that's तो great. हर एक लाइन में आपको लर्निंग है इसमें। Yeah, I'm sure. Lessons Sir, are there. this is, and of course, it's like अभी तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं कभी भी कुछ पेट तो ऑनलाइन नहीं खरीदने वाली हूँ। Anyway, but I understand where you're coming from. And हमने इसमें these kind टिप्स of- दी हैं for end of हाँ, every chapter. My We have next given question tips. to you is this only कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे to anybody? Because sir, ऐसे तो आप एक नटशेल में भी नहीं जी सकते, मतलब आप ये भी नहीं कर सकते। अब ये है तो फोन है तो टेक्नोलॉजी डिजिटल है, वर्ल्ड तो हमें टेक्नोलॉजी को यूज तो करना है, Yes. किंतु उसके जो है खतरों से कैसे अलर्ट होना बचना है। है। हाँ, और बचना यही है कि पहली लाइन तो यही है कि साइबर दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में नथिंग इज 100% सेफ। बी कॉशियस, बी अवेयर। दूसरा ये है कि जितने प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं हम लोग छोड़ देते हैं ना, उतने लें, उससे ज्यादा लें, है ना। तीसरा ये है कि जैसे वो कहते हैं ना डबल ऑथेंटिकेशन, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करें। तीसरा ये है कि अपने मोबाइल को जो है उस पे कोई भी अननोन लिंक आ रहा है, अननोन वीडियो, उसको बिल्कुल क्लिक नहीं करना। अननोन मेल है, क्योंकि उसके थ्रू आपका जो है पूरा मोबाइल हैक हो सकता है, पूरा मोबाइल क्लोन हो सकता है। पता चला आपका सारा डाटा, सारे चैट, सारे फोटो, सारे वीडियो दूसरे के हाथ में चले गए। तो ये इस तरह के बेसिक टिप्स हैं, मतलब कि इसी तरह से अपना ओटीपी हमें किसी को नहीं देना। ओटीपी से पैसा आपके खाते से निकलता है, आपके खाते में आता नहीं है। वो वो तो बोलेगी एक बार को ओटीपी दे दीजिए, मुझे 10 रुपए सैंपल के लिए डाल के देखना है, ऐसे बोलते हैं। कुछ भी ऑनलाइन दुनिया में हम कर रहे हैं तो उस पर 5 सवाल लगाने, व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाई इज आस्किंग फॉर इट, व्हाट इज द नीड, मुझे क्या जरूरत है। वो बंदा बोल रहा है कि बिजनेस जरूरत, मुझे ही क्यों चूज कर रहा है बिजनेस करने के लिए। एक मेजर आर्मी बहुत आता है, आर्मी मेजर बन के फोन कर रही है, मैसेज कर रहे हैं फेसबुक पे, 30-35 साल की, 70 साल के आदमी में क्यों इंटरेस्टेड होगी। सवाल सोचने का सवाल है ना। तो ये सब व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब हमें हाउ, ये सवाल लगाएंगे तो बच जाएंगे। ये हमारे बेसिक टिप है, बाकी तो हजारों टिप्स हैं। So last question, एक मैं आप दोनों से ही पूछूंगी, and this is I think very relevant, क्योंकि अब तो हो गया है जो होना था। जैसे काफी लोगों के साथ, जैसे सर ने बोला, काफी लोग पर्सनल स्पेस में जब कुछ होता है they don't want to get it out, like ये मनी स्कैम्स होते हैं तो वो बता देता है। बट जहाँ पे पर्सनल you're especially for women, वहाँ पे you are very very scared कि if it goes out then it's going to become worse because the police is going to ask me 1 million questions, होना कुछ भी नहीं। और बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी से बोलते हैं that keep shut, मत बोलो, तुम्हारी बेइज्जती होगी या तुम्हारी, इसी से बाहर आना। हाँ, इस चीज से बाहर आना है, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ब्लैकमेल तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। अभी सेक्सटोर्शन में एक रिटायर्ड LIC वाला फंस गया, 45 लाख ले लिया उससे। 45 लाख के बाद वो रिपोर्ट कर रहा है, भाई तो पहले ही कर देता है।
ऐसा है कि देखिए, Sad. पहली बात, लड़के होंगी, लेडीज होंगी, अपने पेरेंट्स से डरती है। अरे पेरेंट्स अपने हैं, आपने गलती करी तो क्या हो गया, आपका फाइनली आपका साथ देंगे, पुलिस के पास आइए। ये सब लोग, उनका पर्पज सिर्फ आपसे पैसा वसूलना है, ब्लैकमेल करना है। उनका पर्पज आपकी वीडियो वायरल करना नहीं है। तो आप जो है आएंगे तो सर्टेनली सॉल्यूशन निकलेंगे। This is very तो बी reassuring. बोल्ड, और जो है ना, सामने आना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा। एक बड़ी बात तो बताता हूँ, आज की दुनिया में AI का खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे वीडियो फेक भी बनने लगेगी। Right. आप एक्चुअल में आपका सोशल मीडिया से उठाएंगे फोटो वीडियो और उसको फेक बना देंगे, तो फिर आप कहाँ तक बचेंगे? True. तो आप यू कैन ऑलवेज से ऑन योर सोशल मीडिया की समवन हैज मेड माय फेक ऑडियो और वीडियो। तो आप क्यों डरना है? आप बोले जो फ्लोट हो रहा है फेक है बस। Yeah, I think a lot of celebrities do that, even if it's real. That's what I'm saying. So come to police and report and get the criminal arrested. Yeah. So I think we have to come out of this mindset and be open about it and understand these things. And because the police is there to help us. This book is an effort to create awareness. And please go out there and buy it and read it and understand how to just not fall into a trap like this, you know. And thank you so much for your valuable time, Thank you. sir. Thank you, Manish. Yes, sir. It was really a pleasure talking to you, and I'm so happy that I also got mindful about so many things. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.